Good morning, students. So, our next chapter of EVS, chapter number 4, is the story of Amrita. So, here is the story of Amrita and her village. There is a story from long, long ago. Jodhpur is located in Rajasthan. Near it lies a village called Khechadi. Why is the village named Khechadi? The village got its name because many khechadi trees grew there. The people of the village took great care of plants, trees and animals. They used to say, if trees are there, then only we can survive. So students, ये जो स्टोरी है वो कहाँ की है? राजस्थान में जोधपुर की। तो जोधपुर के पास एक विलेज था जिसका नाम था खेजड़ी। अब उस विलेज का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज थे। द पीपल ऑफ विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। जो इस विलेज के पीपल थे वो क्या बहुत ज़्यादा उन प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। They used to say if trees are there then only we can survive. वहाँ के जो लोग थे वो क्या कहते थे कि अगर ट्रीज हैं, पेड़ हैं तो ही हम सरवाइव कर सकते हैं। Amrita's friend. Amrita would get up early every morning and greet her friend the trees. She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper, "Friend, you are strong and beautiful. You care for us. I love you very much. Make me also like you." तो यहाँ पे क्या है, एक गर्ल है अमृता। सो अमृता हमें डेली जल्दी उठती थी और अपने फ्रेंड्स के से मिलने जाती थी। फ्रेंड्स कौन थे उसके? जो ट्रीज थे, उनके विलेज में जो भी ट्रीज थे वो सब कौन थे? उसके फ्रेंड्स। तो वो उन ट्रीज के पास जाती, उन्हें ग्रीट करती और ट्रीज किसी भी ट्री के को हग करती और क्या बोलती थी? उसके ट्री ट्रंक को हग करती थी और बोलती थी कि फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, और मुझे भी अपने जैसा ही बनाना, मतलब अपनी जैसी स्ट्रेंथ देना। Like Amrita, other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of trees. अमृता की तरह जो और भी बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उन्होंने भी एक मतलब उनके भी कुछ स्पेशल ट्रीज थे। वो उनके साथ वहाँ उन ट्रीज की शेड पे काफ़ी कई देर खेलते रहते थे। Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? So what will the answer? You can say yes, trees are planted on the roadside of my house. घर के आसपास रोड साइड पे ट्रीज आपके यहाँ भी लगाए गए होंगे ना? Why do we plant trees? So you can say some of them grew by themselves, some were planted by man. Have you seen anyone watering plants? Who does this? तो आपने कभी देखा है कि उन प्लांट्स को कोई पानी उनको दे रहा है? नो। आपने किसी को देखा है उन्हें पानी देते हुए? नो, nobody looks after them. Have you seen fruits on any of the tree? Who eats these fruits? जो रोड साइड में ट्रीज लगे होते हैं, आपने उनमें से किसी ट्री के फ्रूट लगे देखे हैं और उन्हें कौन खाता है? सो यू कैन से यस, young children eat these fruits.
So Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants of trees are growing on their own without being planted by anyone? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक गर्ल है ललिता जिसने देखा कि उसके स्कूल के आसपास कुछ ग्रास और प्लांट्स खुद से ही ग्रो कर रहे हैं और जबकि उन्हें ना कोई उन्हें पानी दे रहा है तो फिर और कोई उनकी देखभाल भी नहीं कर रहा तो फिर वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। आपने भी ऐसे कुछ ट्रीज या प्लांट्स देखे हैं? यस, कैन से यस, इन फील्ड्स ग्रास ग्रोज ऑन इट्स ओन। आपने देखा होगा ना कि जो फील्ड्स होते हैं वहां पे ग्रास क्या अपने आप ही ग्रो करती है, वहां कोई लगाने थोड़ी ना चाहता है ग्रास को। सो दे grows on its own. Why do these trees grow here? What do you feel? Nobody has planted the grass, still they are growing there. Trees in danger. Time went by. Amrita was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw some strangers there. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut the trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. तो यहाँ स्टोरी बताई गई है कि जो अमृता थी अब क्या वो बड़ी हो गई थी तो उसकी जो ट्रीज से वो एक दिन उनको ग्रीट करने के लिए गई तो वहाँ क्या हुआ कुछ स्ट्रेंजर्स आए जिनके हाथ में एक्सेस से एक्सेस क्या होते हैं ये है ना जिसे कुल्हाड़ी बोलते हैं। सो उनके हाथ में एक्सेस से और उन्होंने क्या बोला कि उन्हें वहाँ के किंग ने भेजा जो विलेज था वहाँ के किंग ने उन्हें भेजा है उन ट्रीज को कट करने के लिए। अब ट्रीज को कट किस लिए कर रहे थे? फॉर वुड, उनकी जो वुड है उसके लिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, किंग का जो पैलेस था उसको बनाने में के लिए वुड की जरूरत थी। अमृता was shocked. She went to the tree that the man was about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go the tree. The king's man had to follow his order. They had to cut the tree. Once seeing this, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. अब क्या हुआ कि अमृता ने सुना ये सब कि वो ट्रीज को कट करने के लिए आए हैं। सो शी वॉज शॉक्ड। तो उसने क्या किया वो उस ट्री के पास गई और उसने ट्री के ट्रंक को हक कर लिया टाइटली। और मैन जो उन्हें काटने के लिए आए थे लोग उन्होंने उस पर चिल्लाया भी उसे डराया भी पर अमृता ने उस ट्री को नहीं छोड़ा। लेकिन अब क्या था जो कट करने के लिए आए थे ट्रीज को उन्हें तो किंग का ऑर्डर फॉलो करना था। तो अब क्या हुआ दे हैड टू कट द ट्री, उन्हें ट्रीज कट करने ही थे। On one seeing this, Amrita's daughter and hundred of villagers, old and young, hugged the trees of to protect them. अब क्या हुआ जितने भी बहुत सारे विलेजर्स और अमृता की जो डॉटर थी वो सब आ गए और उन सब ट्रीज को उन्होंने हक कर लिया और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगे। Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. क्या हुआ जो अमृता और उसकी डॉटर और उसके साथ साथ बहुत सारे विलेजर्स मर गए थे उन ट्रीज को सेव करने के लिए। When the king heard of this, he could not believe that
people gave up their life for the trees. He visited the village himself. There he saw the deep feeling of the villagers towards trees and animals. जब किंग ने इन सब चीजों के बारे में सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने ट्रीज के लिए अपनी जान दे दी। और उसने वो खुद ही विलेज में गया और देखा उसने कि इतने सारे लोग यहाँ पे मर गए हैं सिर्फ ट्रीज को बचाते हुए। तो उसे भी ये एहसास हुआ कि उससे अनजाने में गलती हुई है, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों से अनजान था। अब उसने भी सोच लिया कि मैं भी अब से एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करूँगा। So students, do you remember what the elder of this village used to say? इस विलेज के जो एल्डर्स थे वो क्या बोलते थे? They used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। So plants and animals can survive without us, but we can't survive without them. भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, पर हम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss it in your class. So, do you think we could survive if there were no trees and no animals? So, what will the answer? No. The village is protected. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from then on, no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years past, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, the area is green and animals roam about freely and without any fear. So, जो विलेजर्स थे वहाँ के वो इतने ज़्यादा अफेक्टेड थे ट्रीज को लेकर, मतलब ट्रीज से उनका लव और अफेक्शन इतना ज़्यादा था। और जो किंग था उसने भी ऑर्डर दे दिया वहाँ पे कि अब से कोई भी एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा इस एरिया में और कोई भी ट्री कट नहीं किया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years पास्ट, मतलब उन बातों को लगभग 300 साल हो गए हैं, तो भी अभी तक जो उस एरिया के पीपल हैं उन्हें बिश्नोइज कहा जाता है और वो अभी तक प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट द एरिया इज ग्रीन, जबकि ये जो एरिया है वो पूरा डेजर्ट के मिड में है, फिर भी वो एरिया कैसा है? ग्रीन है और एनिमल्स वहाँ पे फ्रीली विदाउट एनी फियर घूम सकते हैं। नेम ऑफ द ट्री, सॉरी, राइट अबाउट एनी वन ट्री, किसी भी एक ट्री के बारे में आपको बताना है तो आप किसी भी ट्री का नाम ले सकते हो। नेम ऑफ द ट्री, डज द ट्री हैव फ्लावर्स, विच कलर। सो कोई भी एक ट्री, जैसे मैंगो ट्री के बारे में आप बता सकते हो। डज द ट्री हैव फ्लावर्स, विच कलर, डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू द ईयर, पूरे साल उस ट्री पे फ्लावर्स रहते हैं? नो। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, कौन से मंथ में उनकी लीव्स फॉल होती है, मतलब कौन से मंथ में उस ट्री के लीव्स गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं बच्चे। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, राइट देयर नेम्स, उस ट्री पे कोई फ्रूट ग्रो करते हैं उनके नेम बताने हैं। इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट, तो कौन से मंथ में होता है मैंगो? इन द
द मंथ ऑफ मे मंथ में होते हैं. हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? यस. सो व्हाई डू पीपल हंट? पीपल हंट क्यों करते हैं? हंट मीन्स शिकार. शिकार किस लिए करते हैं लोग? टू हैव फन, फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड फॉर स्किन. एनिमल्स को शिकार किस लिए करते हैं लोग? उनकी बोन्स के लिए, उनके स्किन के लिए, एंड टू हैव फन. देयर आर रूल्स अगेंस्ट hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why are such punishments imposed? Yes, to protect innocent animals. ये इस तरह की punishments क्यों रखी हैं hunting के लिए? Animals को protect करने के लिए. Talk to your grandparents and find out which birds did they see around them when they were of your age. जब वो आपकी एज के थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो कौन कौन से आसपास में कौन कौन से बर्ड्स देखते थे? बर्ड्स या एनिमल्स, कौन से एनिमल्स और बर्ड्स उन्होंने देखे? गोट, काउ, कुकू, स्पैरो, ये सब होते थे पहले भी. Has the number of some of these birds become less? तो क्या उनमें से कुछ बर्ड्स की जो संख्या है वो कम हो रही है? यस. कौन सा बर्ड है ऐसा जो अब उतना नहीं होता है? आर देयर सम बर्ड और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनीमोर नाउ? ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो अब वो नहीं देख सकते हैं? कौन से हैं? कुकू. कुकू अब बहुत कम हो गई है. Shanti's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrows and myna than he sees today. Can you tell the reason why their numbers have become less? शांति के ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं उसे कि जब वो बच्चे थे तो उन्होंने ये सब बर्ड्स बहुत ज़्यादा देखे थे, जैसे स्पैरो है, मैना है. तो अब क्या रीज़न है कि वो इतने कम हो गए हैं? हंटिंग से भी कम हो गए हैं क्योंकि उनका शिकार किया जाता है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज विच रिड्यूस देयर लिविंग एरिया. अब क्या होता है कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कट कर दिए गए, बहुत ज़्यादा ट्रीज को कट कर दिया जाता है, तो क्या होता है उनका जो लिविंग एरिया है वो बहुत रिड्यूस हो गया है. The khechuri tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see the most in your area? You can say mango tree and coconut tree. Find out more about these trees from your elders. आप अपने elders से इन trees के बारे में और पूछिए and write them in notebook. So students, I hope you enjoyed this chapter. Okay, the khechuri tree is found mainly in desert areas. It can grow without much water. Its bark is used for making medicine. People cook and eat its fruits, beans. Its wood is such that it will not be affected by insects. Animals in this area eat the leaves of the khechuri and children like you play in its shade. आपके इस चैप्टर में स्टार्टिंग में खेजड़ी ट्री का ही बताया गया था. जो अमृता का जो विलेज था वहाँ पे कौन से ट्री सबसे ज़्यादा थे? खेजड़ी. सो खेजड़ी ट्री कहाँ होते हैं? ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में होते हैं और ये बिना वाटर के ग्रो कर सकते हैं. और क्या है जो उनकी बाक होती है? बाक में जो उन ट्रीज की छाल जो बोलते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है वो मेडिसिन बनाने में यूज़ की जाती हैं.
और लोग क्या करते हैं, उसके जो फ्रूट होते हैं उन्हें बीन्स बोला जाता है, तो वो एक वेजिटेबल होती है, उन्हें कुक करते हैं. इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स. जो इस ट्री की वुड होती है वो इंसेक्ट्स उसे अफेक्ट नहीं कर सकते. एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी. जो उस एरिया के एनिमल्स होते हैं वो खेजड़ी ट्री की लीव्स को खाते हैं. और चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड. जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उसकी छाया में खेलते हैं. So students, I hope you enjoyed this chapter. So we will send you worksheet of this chapter. Till then, take care. Bye bye students.